सन्मान योग गुरु निवाजी साध संगत जीओ, आप जी ने बड़े प्यार नाल बैठ के गुरबाणी कीर्तन श्रवण कीता है। आओ हुण अपनियां मनोबिरतियां गुरबाणी गुरमत दी विचारधारा नाल जोड़न दा यतन करिए। एक जिला गुजरांवाला जो अजकल पाकिस्तान विच है, उत्थों दे रहन वाले सरदार गुरदयाल सिंह ते उन्हां दी धर्म पत्नी दा नाम है धर्म कौर। उन्हां दे ग्रह 1791 ईस्वी विच एक बालक ने जन्म लिया जिस दा नाम हरी सिंह रखिया गया। हरी सिंह बालपन तो ही बड़े होनहार सन, बड़े फुर्तीले अते बड़े ही वधिया सिक्ख्यार्थी सन। उन्होंने 6-7 साल की उम्र तक अपनी माँ बोली तो पंजाबी सी, लेकिन उस इलाके विच बोली जान वाली भाषा अरबी, फारसी ते उर्दू, ये 3 बोलियां भी उन्हां काफ़ी चंगी तरह सिख लईयां सन। 7 साल की उम्र विच उन्हां दे पिता जी दा देहांत हो गया। उन्हां दे मामे ने हरी सिंह बालक दी पालना पोषना कीती। समय दे हिसाब नाल उदों जंगी करतब हर एक नूं सिखने जरूरी हुंदे सन, क्योंकि जंगलों का इलाका सी ते अज वर्गा माहौल भी नहीं सी। चोरियां, धाड़े, डाके, कतलो गारद आम करके उदों का रिवाज ही सी मन लो। ते हर बंदे नूं अपनी डिफेंस वास्ते ये सब कुछ सीखना जरूरी हुंदा सी। इन्हां दे मामे ने इन्हां नूं सारियां जंगी विद्यावां सिखाईयां। गतका खेडना, नेजाबाजी, घोड़ सवारी आदिक ये सारे करतब इन्हां ने 13-14 सालां की उम्र तक बड़ी चंगी तरह सिख लए सन। महाराजा रणजीत सिंह हर साल एक दरबार करया करदे सन। उस दरबार विच वो पूरे पंजाब विचों अते बाहरले इलाकियां विचों नौजवानां नूं बुलाया करदे सन। उस दरबार विच जंगी खेडां हुंदियां, नौजवान अपने अपने करतब दिखाउंदे ते महाराजा साहब उन्हां नूं बड़े वड्डे वड्डे इनाम दिया करदे सन। 14 कुछ सालां दी उम्र सी जदों हरी सिंह उस महाराजे दे दरबार विच शामिल होया। उन्हें अपने गतके दे जौहर दिखाए, नेजाबाजी दे दिखाए, घोड़ सवारी करके दिखाई। महाराजा साहब नूं हरी सिंह नौजवान दे रूप विच बहुत भा गया, बहुत चंगा लगा। उन्होंने अपनी जिहड़ी उन्हां दी निजी फौज सी उहदे विच हरी सिंह नूं भर्ती कर लिया।
ਸਾਲ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਜੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਤਲਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਉਹਦੇ ਜਬਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਿਆ। ਨਲੂਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਲ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਲ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਲੂਆ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਮਰੌਦ ਤੇ ਦਰਰਾ ਖੈਬਰ ਇੱਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਰਾਨੀ, ਅਬਦਾਲੀ, ਅਫਗਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਲੁੱਟਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਲੜਕੀਆਂ ਆਦਿਕ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਿਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
अपनी एक फौजी टुकड़ी नियत की। सरदार हरी सिंह नलूआ आखिरी ये लड़ाई उन्हां दी कुछ दिन उत्थे रहे। इन्हां ने एक बार कैंप लगाया सी ते इन्हां दा अपना एक तंबू लग्या होया सी। उस लोकल उस इलाके दे रहन वाली एक सत्कारयोग बीबी जिहदा नां इतिहास विच बानो करके लिखिया है, वो आउंदी है ते वो आके जिहड़े इन्हां दे टेंट दे बाहर वार संतरी खलोते ने उन्हां नूं आखदी है, मैं तुहाडे सरदार नूं मिलना चाहुंदी हां। उन्हां संतरियां ने काम पुछया, वो आखन लगी काम ते मैं केवल सरदार जी नूं ही दस सकदी हां, तुहानूं नहीं दस सकदी। हरी सिंह जी तो उन्होंने इजाजत लैके उस बीबी नूं अंदर जान दिता। उस बीबी ने अंदर जाके सरदार हरी सिंह नूं ये गल आखी कि सरदार जी मैं तुहानूं कई दिनां तो वेखदियां इस इलाके विच विचरदियां ते तुहाडी बहादरी दे किस्से मैं पहलां भी बड़े सुने होए ने। मेरे मन विच एक ख्वाहिश पैदा होई है, वो ख्वाहिश जे तुसीं ठीक समझो तो मैं तुहाडे अगे प्रगट करां। हरी सिंह ने आख्या, बीबी तू निझक हो के गल कह, तू जो भी कहना चाहुंदी है बेखौफ हो के गल कर। असीं किसे दा कोई नुकसान कीता होवे, किसे ते कोई जबरदस्ती कीती होवे, तू दस सकदी है। उन्हें आख्या, नहीं तुसी कुछ भी नहीं कीता, मेरी एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश ये आ कि मैं चाहुंदी हां मेरे उदर तो तेरा पुत्र पैदा होवे, तेरे जिहा होवे। मैं चाहुंदी हां मैं अपने उदर तो एक सूरबीर योधे ते जरनैल नूं जन्म दियां। सरदार हरी सिंह ने आख्या, नहीं बीबा ये गल नहीं हो सकनी, मैं गुरु नानक साहब दा सिख हाँ। लम्मी चौड़ी उन्हां दी गलबात होई ते सरदार जी दे नां करन ते वो बीबी उत्थों तंबू विचों जदों निकलन लगी ते उन्हें एक बचन आखिया। आखन लगी, सरदार जी मैं सुनिया सी कि गुरु नानक साहब दे घर विच आया होया हर शख्स अपनी झोली भर के जांदा है, अपनी ख्वाहिश पूरी करके जांदा है। अज मैं गुरु नानक दे सिख दे दरबार विचों खाली हथ जा रही हाँ। ये बचन सुन के सरदार जी ने आख्या, बीबा रुक जा। वो रुक गई। सरदार हरी सिंह नलूआ अपने आसन तो उठे, उठ के उस बीबा दे पैरीं हथ लाया ते आखन लगे, अज तो तू मेरी धर्म दी मां है ते मैं तेरा धर्म दा पुत्तर हाँ। तेनू मेरे जिहा पुत्तर ही चाहिदा सी ना। अज तो तू मैनू अपना धर्म दा पुत्तर मन ते एक गल होर याद रखी, मेरे जिहा केवल मैं ही हाँ, मेरे जिहा कोई होर नहीं हो सकदा। यानी इस दुनिया पूरी दे अंदर जिहो जिहा कोई है उहो जिहा सिर्फ वो ही हुंदा है, उहदे वर्गा कोई होर नहीं हुंदा। सरदार हरी सिंह नलूआ कुछ दिन उत्थे रहे ते इतिहास कहंदा वो बीबा उन्हां नूं मिलदी रही, इस तरह ही मिलदी रही जिवें अपने पुत्तर नूं मिलन आउंदी होवे ते सरदार हरी सिंह नलूआ नूं इस तरह ही मिलते रहे जिवें अपनी मां नूं मिलते होण। जमरौद दे किले तो बाहरले पासे मैदान विच हरी सिंह नूं 2 गोलियां लगियां, जिन्हां करके वो शहीद होए। वो घोड़े ते चढ़े हुए सन ते वो किले दे अंदर आ गए। अंदर आके अपने साथी सरदार माहा सिंह नूं आखन लगे कि मैनू लगदा है कि मैं हुण इस चोले नूं त्याग दियांगा, मैनू जख्म बहुत डूंगा लग्या है।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਢੁੱਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅਫਗਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਭਾਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਹਊਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਂ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅਫਗਾਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰੀਆ ਰਾਗਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਸੌਂ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੋਲਕੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਲਕੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਹ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। 1849 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 2-3 ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? सरदार हरि सिंह नलुआ का
भारतीय इतिहास में एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के 19वीं सदी के समय में उनकी उपलब्धियों की मिसाल पाना महज असंभव है, परंतु इनका योगदान स्मरणार्थक एवं अनुपम होने के बावजूद भी पंजाब की सीमाओं के बाहर अज्ञात बनकर रह गया है। इतिहास की पुस्तकों के पन्नों में भी इनका नाम लुप्त है। ये जिहड़ियां हाईलाइट पंक्ति कीती है, मैं इहदे वल ध्यान दिओ। पंजाब दी हद विच भी सरदार हरि सिंह नलूआ नूं कोई नहीं जानदा। पंजाब तो बाहर ते पंजाब दे अंदर जिहड़ियां किताबां पढ़ाईयां जांदियां ने, इस वीर दा कहना है कि उन्हां विच भी उन्हां दा नां कोई नहीं। थोड़ा जिहा अगे होर पढ़दे हां, फिर मैं एक दो बचन तुहाडे नाल करना चाहुंदा कि साडे जिहड़े सिख राजनेता ने पंजाब दे अंदर वसन वाले, वो किवें कुंभ करनी नींद विच सुते होए ने। कहंदे ने कुंभ करन जदों सौंदा सी ते 5-7 महीने नहीं सी उठदा हुंदा, ते जे किते विचकाए उहनूं उठाउणा पै जाए किसी काम करके, ते उहदे कन्नां विच ना वड्डे वड्डे ढोल लिया के वजाउणे पैंदे, ते ओह ढोल दी आवाज़ सुन के उठ पैंदा हुंदा सी ते पुछदा हुंदा सी मैनूं क्यों उठाया। पर साडे सिख राजनेतावां नूं 84 दे अंदर दरबार साहब कंपलैक्स दे विच वड्डियां वड्डियां तोपां चलाईयां गईयां, एडे वड्डे वड्डे गोले चलाए गए। उन्हां गोलियां दी आवाज़ सुन के भी सिख राजनीतिक लोग जिहड़े ने वो नहीं जागे। माड़ी जी करवट बदली ते फिर पासा बदल के दूजे पासे नूं मूँह करके फिर सौ गए। इहदा जिम्मेवार कौन है कि इन्ने हीरो ने पंजाब दे अंदर जिन्हां ने हिंदुस्तान की आज़ादी विच वड्डा योगदान पाया है, उन्हां दा किते नामो निशान नहीं लभदा। जिम्मेवार कौन है? पब्लिक नहीं है। इहदे जिम्मेवार राजनेता हन, जिन्हां दी जिम्मेवारी बनदी सी उत्थे एजुकेशन मिनिस्टर बन के अपने घर तां भरदे ने लुट लुट के पंजाब दी पब्लिक दा धन, लेकिन स्कूलों च पढ़ाया की जांदा? तुहाडे विचों बहुते लोग पंजाब विच ही पढ़े होणगे। मैं जदों ज्ञानी कीती पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले तो कीती सी, कख नहीं पढ़ाया गया, ना इतिहास दा ना गुरबाणी दा। पढ़ाया की गया? नावल, नाटक, किस्सा ते कहानियां बलवंत गार्गी दियां। कित्थे चला गया साडा सिख इतिहास? ये समझण दी जरूरत है जी। इस वीर ने लिखिया इनका नाम लुप्त है। लुप्त दा मतलब हुंदा लभ नहीं रहा, ओले विच लुकिया होया है। चलो अगे पढ़दे हां। उन्होंने लिखिया आज के दिन उनकी शहीदी के अवसर पर, कल उन्हां दा शहीदी दिवस सी 30 अप्रैल नूं 1837 ईस्वी। वो कहते ने आज के दिन उनकी शहीदी के अवसर पर इनकी अफ़गानिस्तान से संबंधित उल्लेखनीय परिपूर्णताओं को स्मरण करना उचित होगा। हुण अगे फिर थोड़ा ध्यान दिया जे, जहाँ ब्रिटिश, रूसी और अमरीकी सैन्य बलों को विफलता मिली। तुसी समझदे हो ना, अफगानिस्तान दे अंदर ये 3 मुल्कां दे सैन्य बल यानी फौजां जिथे अफगानियां नूं दबा देण विच विफल रहियां, उन्हां नूं सफलता नहीं मिली। इस क्षेत्र में सरदार हरि सिंह नलूआ ने अपनी
सामरिक प्रतिभा और बहादुरी की धाक जमाने के साथ सिख संत सिपाही होने का उदाहरण स्थापित किया था। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਏ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ लिखा इस वीर ने, यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि पेशावरी पश्तून पंजाबियों द्वारा शासित थे, यानी पंजाबी उन्हां उत्ते शासन करते सन। ये पहला वक्त सी वर्ल्ड हिस्टरी दे अंदर। इसलिए रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से हरी सिंह नलवा की तुलना दुनिया के श्रेष्ठ जरनैलों से की जाती है। सो सचमुच ही जे दुनिया के जिहड़े सर्वश्रेष्ठ जरनैल होए ने, फौजी जरनैल, उन्हां विच जे सरदार हरी सिंह नलूआ दा नाम शामिल है ते क्यों नहीं उन्हां नूं पढ़ाया गया पंजाब दे अंदर? क्यों नहीं उन्हां दी गल लोकां तक पहुँचाई गई? क्यों नहीं हिंदुस्तानियां नूं ये गल दसी गई कि जे अज दर्रा खैबर सदा लई बंद है तो सरदार हरी सिंह नलूए दी बदौलत बंद है। सो जी ये गल मैं इस करके अज तुहाडे नाल कीती है। कल जिहड़ा बीतिया है दिन सरदार हरी सिंह नलूए दी शहादत दा दिन सी। इस जमरौद दे किले विच कुछ दिन उन्होंने शरीर नूं रख के, यानी उन्होंने आख्या सी मेरी मौत की खबर ना निकलन देनी। जदों लाहौर तो होर फौज आई, उस तो बाद उन्होंने शरीर का जमरौद के किले में संस्कार किया गया। ते महान कोश विच लिखिया होया कि उत्थे उन्हां दी यादाश्त बनी हुई है जमरौद के किले विच अज भी। सो इहो जे सन सरदार हरी सिंह नलूआ। उन्हां दे जीवन दियां बड़ियां सारियां छोटियां छोटियां कहानियां ने, फिर कदी करांगे, पर उन्हां दा जिहड़ा आचरण इन्ना उच्चा ते सुच्चा, उन्हां दा करैक्टर, उन्हां दा सच दे आधार ते जीवन जिउणा, बिना वजह तो किसे नूं तंग ना करना, किसे ते हत्थ ना चुकना, ये सारे गुण उन्हां विच विद्यमान सन। सो आओ हुण असीं जिहड़ी आपां गुरबाणी दी विचार करदे आ रहे हां उस वल अपना ध्यान लै जाइए। पिछली कथा विच आपां गुरु दूजे पातशाह महाराज जी दा लिखिया होया ये श्लोक समझ रहे सां, जिस विच गुरु जी ने बचन लिखे सन कि साडा जिहड़ा मन है एक कमरे दी, एक मकान दी न्याई है, एक कोठे दी तरह है। इस कोठे दे उत्ते जिहड़ा साडा ये शरीर है पंज तत्तां दा बनिया होया, ये मानो एक छत दी तरह है। इस कोठे दे दरवाजे नूं माया दी मोह ममता दा मानो ताला लग्या होया है, ते उस ताले दी जिहड़ी चाबी है वो गुरु कोल है। उस तो बिना ये दरवाजा खोलिया नहीं जा सकता। गुरु महाराज जी ने बाणी विच लिखिया, बज्र कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुलीजै। ये जड़े साडे इत्थों वाले बज्र कपाट ने, जिन्हों असी 10वां द्वार भी आखदे हां, इहदा द्वार, इहदा दरवाजा इस तरह का सख्त है जिवें पत्थर दे दरवाजे किसी नूं लगाए गए होण। ना खुलनी, वो साडी हिम्मत नाल खुल नहीं सकदे। उन्हां नूं खोलण वास्ते सानूं
गुरु दी सिक्ख्या दी जरूरत है। गुर शब्द खुलीजै, गुरु दे शब्द द्वारा। मैनू एक महापुरुष मिले सन जिहड़े कहिंदे सन कि असीं जदों शब्द दा अभ्यास करदे हां वाह गुरु दा, इस शब्द दी चोट मारनी है उत्ते। जिहड़े तुसीं अभ्यास करदे होवोगे तुसीं जरूर समझदे होवोगे कि वो चोट किस तरह वजदी है। ते मैं ते सारिਆਂ ਨੂੰ ही बेनती करना चाहांगा भई अभ्यास करिया करो। जिहड़ियां महापुरुषां दी अज असीं गाथा कीती है वो अभ्यासी लोक सन। वो केवल तलवार दा ही धनी नहीं सन, वो चौंकड़े दे धनी भी सन। वो कई कई घंटे बैठे समाधि विच स्थित रहिंदे सन, गुरु दे शब्द दा अभ्यास करदे सन, गुरु दी पवित्र बाणी दा अभ्यास करदे सन कि बाणी विच लिखिया की है, उस नूं अमल विच किवें लिआउणा है, किवें इहो जिहियां बहादरियां हो सकदियां ने, किवें इन्ना आचरण उच्चा ते सुच्चा पवित्र रखिया जा सकदा है। ये सारे बचन गुरु दे शब्द विचों, गुरु दी बाणी विचों उन्हां नूं प्राप्त होए सन। सो आपां सारे जी अभ्यास जरूर करिया करिए नाम सिमरन दा। इहदे तो बिना असीं अधूरे रह जावांगे, साडी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी, इहदा कोई अर्थ नहीं होएगा। असीं हर वक्त मर रहे हाँ। सानूं इउं लगदा कि साडी मौत ते शायद 100 सालां नूं जा के होएगी, पर असीं ये भुल जाने आ कि असीं हर वक्त मरदे हाँ। वो क्रिया जारी है। हर श्वास जिहड़ा बाहर चला गया, असीं एक श्वास होर मर गए हाँ, एक श्वास होर मर गए हाँ, ते एक फाइनल श्वास होना जदों उस तो बाद श्वास आउणा नहीं। असीं हर वक्त मर रहे हाँ ते साडी जिंदगी दा लक्ष्य इक्को ही है, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। वाहगुरू जी नूं मिलना है ते उस नूं मिलन वास्ते गुरु दे कोल है चाबी कि उन्हूं मिलना किवें है। उस रस्ते नूं गुरु सानूं समझाउंदा है कि किवें चलना है। बस वो शब्द दी चोट करनी अंदर, जिवें जिवें शब्द दी चोट करांगे उस चोट दे नाल दरवाजा जरूर खुलेगा, गुरु मेहर करेगा। सो आपां यतन करिए, अभ्यास करिए। सानू गुरु अंगद देव महाराज जी ने यही बचन समझाया है। अगे है राग मलार, जिहड़ा सिरलेख है उस तो अगला राग मलार जिहड़ा इहदे संबंध विच एक बचन बड़ा ही इतिहास विच लिखिया मिलदा है कि जदों कोई रागी सिंह मलार राग नूं ठीक सही अर्थां विच गाउंदे ने ते आकाश विच बदल दियां घटा छा जांदियां ने। कित्थों तक सच है आपां नूं नहीं पता, क्योंकि अपना कोई राग विद्या नाल वाह वास्ता नहीं। रागी सिंह जरूर जानते होणगे, पर जे इतिहास विच लिखिया इसका जिक्र मिलता है तो सच ही होना है, झूठ क्यों होएगा। गुरु महाराज जी ने इस राग दे संबंध विच इहनूं सीतल राग लिखिया होया है कि ये जिहड़ा राग है ये सीतल राग है, ठंड पहुँचाण वाला राग है। ते जदों बाहर तपश पैंदी होवे ते रागी सिंह इस राग नूं ठीक अर्थां विच गा देण ते घटावां चढ़ के बदल दियां आ जाण ते वरखा होनी शुरू हो जाए ते ठंड ही पै जांदी है ना। गुरु तीजे पातशाह महाराज जी ने लिखिया मल्हार सीतल राग है, हर ध्याएं शांत होए। पर सानू गुरमत ने एक गल सिखाई है ते समझाई है, वो ये है राग भावें सीतल ही होवे पर जे उहदे विच शब्द जिहड़े ने वो सीतल ना होण ते राग दी सीतलताई भी खत्म हो जाती है। उहदे विच शब्द भी उहदे अनुसार होने चाहिए ने ते गुरु साहिबां ने उहदे अनुसार शब्द उचारण कीते।
कि जे तुसीं आ शब्द मल्हार राग विच पा के गाओ तो तुहाडा मन शीतल हो सकता है, शांत हो सकता है, ठंडा हो सकता है, तुहाडी भटकना मुक सकती है। हर ध्याया शांत होए। जे तुसीं वाहिगुरू जी का ध्यान करो तो गुरु की पवित्र बाणी दे शब्दां नूं इस राग विच पा के गाओ तो तुहाडा हिरदा शांत हो सकता है, भटकना मुक सकती है। हर जीओ अपनी कृपा करे तां वरतै सब लोए। सब लोए का मतलब है सारी लुकाई विच। जे परमात्मा अपनी कृपा कर देवे किसी मनुख दे उत्ते ते ओ मनुख गुरु दे शब्द नूं, गुरु दी बाणी नूं इस राग विच पा के गावें, यानी वाहिगुरू जी का ध्यान करे ते ओदा अपना हिरदा शांत होएगा ते जिहड़े लोग उसकी संगत करनगे वो भी शांत होणगे। अज दुनिया विच भटकना दा जी एक कारण है कि आम पब्लिक ते भटकना विच पई हुई है। इस पब्लिक नूं राह विखाउण वाले लोग खुद भटके हुए ने, चाहे वो राजनेता ने ते चाहे वो धार्मिक नेता ने। भटकना सबना दे मनां विच है। धार्मिक नेता गोलक पिछे लड़ी जाते ने, राजनेता जिहड़े ने कुर्सी पिछे लड़ी जाते ने। भटक सारे ही रहे ने, बचा किते भी नहीं। ते जे सानू राह दिखाउण वाले भटक गए होण ते जिन्हां नूं राह दिखाया जा रहा है वो कदों ठीक मंजिल ते पहुंचणगे। ये गल्लां जी समझण वालियां ने। चाहिदा है कि राह दिखाउण वाला सुजाखा होवे, अन्ना ना होवे। गुरु जी ने बाणी विच लिखिया, मैं अपने कोलों नहीं ये गल आखी, अंधे कै राह दस्सिया। जे अन्ना बंदा राह दसदा होवे सुजाखे बंदे नूं ते सुजाखा किवें मंजिल ते पहुंचेगा जे दसन वाला ही अन्ना, जिन्नू पता ही नहीं राह जांदा किधर नूं है। इशारा वो किधर नूं कर रहा है ते राह पता नहीं किधर नूं जांदा है। सो सानू जी ये सारियां नूं चाहीदा है, मैनू भी, तुहानू भी, राजनेतावां नूं भी, धर्म नेतावां नूं भी, कि असीं पहिलां वाहिगुरू जी नूं ध्याईए। जिवें जिवें उन्हूं ध्यावांगे साडा अपना मन शीतल होएगा, शांत होएगा। जिवें साडा मन शांत होएगा फिर असीं किसी नूं रस्ता दसांगे ते वो भी ठीक अपने ठिकाने ते जरूर पहुंच जाएगा। इस राग मल्हार दे अंदर पहले पातशाह दा पहला ही शब्द है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक साहब जी ने बचन लिखे ने, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। भटकना दा कारण की है? ये है भटकना दा कारण। सानू ये चार गल्लां याद ने, खाना पीना हसना ते सौना। जिहड़ी गल सानू भुल गई है वो की है? विसर गया है मरना। मैं हुणे बेनती की कि असीं हर सवास मर रहे हाँ। मत जानो कि असीं पूरे जिंदा हाँ। मैं 67 साल मर चुका हाँ। तुसी भी अपने अपने साल गिन के वेख लवो, तुसी भी उन्ने साल मर गए हो। जे आत्मक जीवन जिउना चाहुंदे हो ते मौत नूं याद रखो। जदों कोई व्यक्ति मरना चित रखदा है, मरण नूं याद रखदा है, वो कदी माड़ा कर्म ते गलत कर्म नहीं कर सकदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं समा हो गया जी, मैनूं 1 मिनट चाहिदा होर। एक राजे ने आके पुछया सी, सवाल कीता सी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज उदों बड़ी जवानी उम्र विच सन, 20-25 सालां दी उम्र सी ते उन्हां दा दरबार सज्जिया, जवान लोग, धीआं भैणां, जवान सिंह बैठे सन। ਉਹ राजे ने आके दरबार की दिख नूं वेख्या, इन्ना शाही ठाठ बाट, ते उन्हें एक सवाल कीता सी कि गुरु जी तुहाडा मन किवें टिकाणे रहिंदा है?
गुरु जी ने आख्या कोई नहीं, तेनू दसांगे साडा मन टिकाणे किवें रहिंदा है। वो राजा कुछ दिन ठहरिया, आग्या लैके वो घर नूं जान लगा ते गुरु जी ने आख्या कि तू चलिया है तो बड़ी जरूरी गल तेरे नाल करनी, मैं चाहुंदा कि जाण तो पहलां कर लईए आपां। वो कहंदा हाँ जी जरूर कर लो। गुरु जी ने आख्या अज तो 7वें दिन नूं तेरी मौत हो जानी है, ये याद रखी। वो घर चला गया, उन्होंने खाना पीना हसना सौना सब विसर गया। पहलां तो यह सी कि सानू मरना विसरिया, आ चीज़ां याद ने। हुण खाना पीना हसना सौना वो सब भोग विलास सब विसर गए। राजे नूं मरना चेते विच आ गया, सारियां गल्लां भुल गईयां। 7 दिन लंघ गए, वो नहीं मरिया। तो गुरु महाराज जी दे कोल आ गया, आखन लगा तुसी आख्या सी मैं 7वें दिन मर जाना, मैं नहीं मरिया। गुरु जी ने आख्या वो अगली गल आपां बाद च करदे हां, पहलां ये दस कि इन्हां 7 दिनां तू की कीता। वो कहंदा करना की सी, मैनूं ते एक मौत ही नज़र आ रही सी, कुछ भी नहीं सी दिस रहा मैनूं। ये सारे जिन्ने भोग विलास राजियां कोल हुंदे ने सारे ही सन मेरे कोल, पर मैनूं ते उन्हां वल ध्यान ही नहीं गया, सिर्फ मौत दिस रही सी। गुरु जी ने आख्या तू मरना नहीं सी, ये तो मैं तेरे सवाल का जवाब दिता सी कि तू पुछया सी कि मेरा मन किवें स्थिर रहिंदा है, किवें टिकिया रहिंदा है। मैं मौत नूं याद रखदा हाँ। जिन्हां नूं मौत याद रहिंदी है उन्हां नूं रब कदे नहीं विसरदा। सो जी कोशिश करिए आपां खाना पीना हसना सौना भावें इनू करना है, आपां छड्डना नहीं, लेकिन मौत नूं विसार के नहीं, मौत नूं चित्त विच रखदिआं। मौत याद रहेगी, आपां माड़े काम नहीं कर पावांगे। मौत याद रहेगी, किसी का बुरा नहीं कर पावांगे। मौत याद रहेगी तो परमात्मा चित्त विच वसिया रहेगा। सो इत्थों ही आपां आउण वाले समय च गल अगली शुरू करांगे। अज तुसी बड़े प्यार नाल बैठ के अज दी विचार नूं सुनिया है, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मेरियां गलतियां लई तुहाडे तो मैं खिमा चाहुंदा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।